یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عادل رضا اور آج ہم موجود ہیں صادق آباد کی ایک جھگیوں کی بستی میں۔ آئے ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیسی اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نارمل انسانوں کی طرح اچھی زندگی گزاریں۔ اگر میرا کیمرہ مین عقب میں آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پہ ڈیران گن کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں جس میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ سخت خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں ان کو، اور حکومت وقت کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں یا کوئی اقدامات اٹھائیں۔ آئے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا دل نہیں چاہتا کہ ان کے بچے اسکول جائیں، کہ ہر وقت یہ بھیک مانگ کر ہی گزارا کریں گے یا بھیک کے علاوہ بھی ان کا کوئی ذریعہ معاش ہے، یہ کام کاج بھی کرتے ہیں۔ ان سب سوالات یہ جانیں گے انہی سے۔ آئے ہمارے ساتھ۔ ہم موجود ہیں یہاں بستی میں ایک جوگی میں محمد صدیق بھائی کے پاس۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ بھائی آپ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ ہم پنڈی اسلام آباد میں جہاں بھی دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی برادری بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگ آتے کہاں سے ہیں؟ ہم ادھر ہی رہتے ہیں شروع سے یہی رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہ معاش یہ گھروں کا کام کرتے ہیں، کچرا اٹھاتے ہیں۔ بھیک وغیرہ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کی یہ جو آنے والی نسل ہے وہ پڑھیں، اور حکومت سے کس قسم کے مطالبات کرتے ہیں؟ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ یہ ہمارا غریبی کا 50 سال ہو گیا، ادھر ہی رہتے ہیں ہم، کوئی مقابلہ نہیں ہے لوگوں میں۔ آپ لوگوں کی طرح ہی لوگ ہوتے ہیں بازاروں میں بھیک مانگتے ہیں، تو ان کا اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ میں ابھی یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو گھروں سے کوڑا اٹھاتے ہیں، گند اٹھاتے ہیں، اپنا رزق حلال کا چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہم نے بازاروں میں دیکھا ہے جو لوگوں کو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں اور ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ ہمارے میں بہت فرق ہے۔ ہمارا کام ہی ہے کچرا اٹھانا، گھروں سے کاغذ بھی چنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم یہ مانگتے نہیں ہیں۔ جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی طوفان وغیرہ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو کن قسم کے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بس یہ اللہ کی طرف سے یہ لگا ہوا ہے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ طوفان آتا بھی ہے تو چل جاتا ہے۔ اگر کوئی بیماری وغیرہ آتی ہے یا مطلب آپ لوگ جب بیمار پڑتے ہیں ہاسپٹلز وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بس جو لوگ آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں پھر ان لوگوں سے پرچی لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں۔ مطلب کام ایزیلی ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی وہاں پہ؟ کوئی نہیں تکلیف۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے بستی کی خالائیں، آئیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالہ کیا نام ہے آپ کا؟ مقبول بی بی۔ مقبول بی بی، مجھے یہ بتائیں کہ کب سے ان جھگیوں میں رہ رہی ہیں؟ برسوں سے بیٹا۔ مشکلات کون کون سی ہے بیٹا؟ مشکلات میں آپ کو کون سی بتاؤں کہ نہ بجلی، نہ پانی، نہ کوئی ساڈی سہولت نہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی کتے کوئی ساڈے بچے والے کوئی سکول نہیں ہے۔ جڑے وہ ملتے ہیں بے نظیر دے شناختی کارڈاں تے پیسے، ساڈے لوکاں وہ بھی کوئی نہیں نے۔ بے نظیر دے رہی ہے، مریم نماز دے رہی ہے، کچھ نہیں، سانو کچھ بھی نہیں ہے۔ ویر لکی میں بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں ذریعہ معاش کیا ہے؟ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ویسے بیٹا میں تیرے بتاتی ہوں، بچے نے گھراں چوں کچرا چکتے نے، یہ بوتلاں وغیرہ جو پیتے ہیں، پانی والی سوڈے والی بوتلاں، کوئی گتا نکل آیا، وہ کباڑ نکلا، وہ ویچ لیا۔ کوئی مہینے تو 200 دیتا مہینے دا کچرے دا، انہیں 300 دیتا، کسی 150 دیتا، ایسے گزارا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں جب حالیہ بارش ہوئی ہے پورے پنڈی اسلام آباد پانی میں ڈوبا ہوا تھا، آپ لوگوں کے پاس کیا سچویشن تھی؟ کیا کوئی آیا ہے مدد کی پوچھنے کے لیے یا کیا سچویشن تھی؟ کیسے مینج کرتے ہیں؟ بھوکے رہندے رہے، اللہ جاندا بھوکے رہندے رہے، کیوں کہ نہ جاندے سکنا کچرا چکن تے نہ وچوں کباڑ نکلدے سن، ویچدے س بھوکے بیٹھے۔ اوے ہن پتہ ہی 100 روپیہ سی، اسی سارے جیاں 2 نان منگا کے تھوڑے کھا کے تے بس تو پانی پی کے بیٹھ۔ کتنے بچے؟ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے تو بچے ماشاءاللہ 8 سی، 3 اللہ نے پیارے ہو گئے تے 5 آپ دے گھر والے نہیں، تے میں تو بڈھی رانا
तू रोटी देती तो खा लीजिए, नहीं रोटी देती। अल्लाह को प्यारे होने की वजह बस वो अल्लाह ने प्यारे मार गए। बीमारी वगैरह से या किसी एक और? मेरे बेटे ने डिंगी लड़े सी, उनके 5 बच्चे ने। अच्छा, एक मेरी बेटी बीमार हुई सी, तो उनके 3 बच्चे सी, अल्लाह ने प्यारी। एक ने 4 बच्चे सी, वो अल्लाह ने प्यारी हो गए, बीमार सी। उन्हें पता नहीं की सारा ना हत्था पैर चना रेशा रेशा। जब आप लोग की डेथ होती है किसी के, कोई मर जाते हैं, उनको दफन कहाँ पे करते हैं? कब्रिस्तान पे। इधर ही की आप लोग के अपना वो होता है कब्रिस्तान? नहीं साडा मुसलमानी तरीके से कराना। नहीं मतलब इधर अपने साथ ही कब्रिस्तान है या किसी भी कब्रिस्तान है? किसी भी एक इधर जड़ा कब्रिस्तान। मेरी एक बेटी इतने पोत हुई, मेरा नवासा पोत है इतने। आप लोगों का दिल नहीं करता कि नॉर्मल जो बाहर की इंसान जिंदगी गुजारते हैं वैसी जिंदगी गुजारें, और या अपने बच्चों को तालीम स्कूलों में भेजें, या कुछ इस तरह का दिल नहीं करता आप लोगों का? बेटा करता मतलब इतने वे कदी अज इतने ने कोई 2 साल 2 साल इतो बिठा देते। अपने नहीं मंगे गया वेखना जगह, अपनी जगह नहीं है, एक किराए की ये जगह। दिल करे तो बिठा देते ने, फिर किते और किते चले जाते ने, फिर किते और किते चले जाते ने। फिर इस गल्ला नहीं, इस गल्ला कितना किराया देते हैं? 2500 एक चुग्गी दा। एक जुग्गी दा 2500 किराया। और ये कौन लेता है आपसे? और जमीन वाले मैं तना नाम कदी उन्होंने मिली ना बढ़िया अच्छा, पता है। वो एक जुग्गी ना 2500 किराया आपसे लेते हैं, तो वो उसके बदले देता है क्या? क्या सिर्फ जमीन या कुछ और भी देता है? नहीं जिंदी जगह चाहिए असी। अच्छा, हाँ फिर भी उनकी मेहरबानी कि ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਰਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਚਾਣੇ 200 ਦੀ 300 ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਂਡੀ ਦਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਨੇ, ਆਂਡੀ ਪਕਾ ਲੈਨੇ। उसके अलावा जब आप बर्तन धोए जाते हैं उसके लिए साफ पानी कहाँ से लेके आते हैं? सालन बनाने के लिए और इस्तेमाल के लिए साफ पानी और पाक में पानी ले आने ना शक्कड़ी ते कहना लेके आने। ये हमारा वॉशरूम है, इधर कहने भरते हैं पानी के लिए, दूर से लेके आते हैं, वो नहा लेते हैं। खाने के लिए एक टाइम मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या मुतालबा है? भी बच्चों को स्कूल भेजा जाए। हमको भी शौक है कि भी बच्चे हमारे पढ़ जाएं, कलमा नमाज पढ़ें, मुसलमान हैं। कोई हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता, ना कोई जाते हैं, पैसा ही नहीं होता, स्कूल कैसे भेजें? किताबों के लिए, फीस के लिए, बूटों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिले के लिए कोशिश की है या वो दाखिला देते हैं? वो देते ही नहीं, हमने की भी है तो 2-4 को लिए, तो उन लोगों ने बोला भी फीस ही है। इधर 2 साल हो गए, ये वाले लोग अच्छे हैं, ये हमको कुछ नहीं कहते, हम किराया दे भी देते हैं, किसी टाइम नहीं भी देते, हमारे को कोई तंग नहीं कर रहा। क्या बना रही हैं आप? चावल चावल नहीं है, गैस वगैरह नहीं। आते कहाँ से हैं ये चावल? इसमें गोश्त भी है या सिर्फ चावल है? नहीं बस गर्दने डाली हैं हमने। अच्छा, गर्दने डाली है। क्या मतलब जो यहाँ पे आग पे बनते हैं तो उसको मतलब बाद में साफ वगैरह कैसे करते हैं? क्योंकि ये नीचे से सारा काला सा हो गया है। वो किसी चीज से करते हैं ना, वो तार होती है ना लोहे की, अच्छा, ऊंची होती है, उससे बनाते हैं, उसको साफ करते हैं। हुकूमत से कोई मुतालबा है या दिल चाहता है कि हम भी चूल्हों पे गैस पे आराम सुकून से बनाएं? जी क्यों नहीं, इधर कोई सुकून नहीं है। किराया ज़्यादा है, 2500 रुपये किराया, उतनी आमदन नहीं है। और पैसे कहाँ से आते हैं आमदन की? पैसे ये मेरा मियाँ ही कमाता है। मोहम्मद इमरान भाई क्या काम काज करते हैं? सर लकड़ी का मेरा काम है। लकड़ी का क्या काम है? लकड़ी यही गलियों से उठाते हैं, जैसे कि कचरा उठता है उधर जाके डेरियों से उठाते हैं लकड़ी, ठीक है ना? तो यही दिहाड़ी का जो ना 1500 भी हो जाता है, 1200 भी हो जाता है, इसी तरह ही है, बस मुख्तलिफ है ना काम। अच्छा, तो मंथली टोटल कितना कमा लेते हैं? मंथली का, महीने का आप अगर बताए ना तो 20,000 भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है। ठीक हो गया। उसमें आपके अलावा इस घर में और कितने बंदे कमाते हैं? सिर्फ मैं ही हूँ। सिर्फ आप ही हैं? और कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह एक बेटी है सर। अच्छा, एक ही बेटी है सिर्फ? जी। तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोग इस तरह के डेरानों में रहते हैं, बीमारियां भी आती होंगी, और हुकूमत से कोई मुतालबा है अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, कोई ख्वाहिश, मुतालबा, अच्छे घर में रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है?
सर क्यों नहीं है, बरल क्या आमदन के साथ ही सब कुछ होता है ना। यही होता है ना कि आमदन होएगी तो आगे ज़मीन लेंगे, जगह घर लेंगे। इतनी आमदन में तो सिर्फ घर का गुजारा ही होता है बस। बाज़ जगहों पे हमने देखा है कि झुग्गियों की वीडियोस आती है, उनके अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे हम आए हैं तो कचरे का ढेर लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों की बिरादरी जो होती है बाज़ारों में हमें मांगते हुए भी नज़र आती है, तो उनमें और आप में क्या फ़र्क है? सर फ़र्क यही है कि वो जो है ना, कोई किसी का काम मांगने का होता है और कोई जो ना वो मज़दूरी अपनी करता है। हमारी कोई एक कौम नहीं, 101 कौम है, कोई काम करती, कोई काम करती है। जो इधर के लोग हैं ना, वो कोई गलियों में कचरा उठाते हैं, कोई ऐसे यानी कि रक्षा अपना निकालते हैं, वो गलियों से कचरा वगैरह या डेरियों से उठाते हैं बस। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, हुकूमत हमारा क्या करती है। बड़े बड़े गरीबों ने आगे भी इंटरव्यू दिए हैं, क्या मुतालबा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत से आप लोग सब नाला नज़र आते हैं, आज तक हुकूमत ने आप लोगों की कोई स्टेप नहीं लिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम्स या एहसास प्रोग्राम जो इमरान खान का था, उसमें से कोई भी आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, मुआवजा या राशन वगैरह? सर कुछ भी नहीं है, यही होता है, बोलते हैं जी कार्ड ले आओ, और हमारे गरीबों का क्या है सर, जो अगर होता भी है तो किसी का वो बारिशें इतनी होती हैं, पानी आ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है सब कुछ, यानी कि ना यही है। जब बारिश होती है, पानी आता है, तो उसका पानी निकलता कैसे है और उससे क्या क्या नुकसान होता है? सर यही है, हमारी ये झोंपड़ी टूट जाती है, ये देखें ना लकड़ी तो है, इसका क्या है, पानी तो आपको पता है बड़े बड़े घर को डेग देता है, गिर जाते हैं यानी कि अक्सर, तो इस लकड़ी का क्या है? बच्चे क्या कर रहे हो? ये भाई हम घरों का कचरा उठाते हैं, घर का रोटी चलाते हैं, कुबार शांति कर रहे हैं, हमारा भी दिल करता है स्कूल जाने में। क्या काम करती हैं और बच्चों का क्या वो है, स्कूल जाते हैं इनके लिए? नहीं भाई, हमें हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है स्कूल भेजने की। तो रोज का हम 600-700 कमाते हैं, कबाड़ कचरा उठा के छांटते हैं, तो बच्चों को खिलाए जो हम स्कूल भेजें इनको। तो क्या बच्चे, आपका दिल नहीं करता कि आपके बच्चे? हमारा भी दिल करता है हमारे बच्चे स्कूल पढ़े, अच्छे घर में रहे, बिजली में रहे, पानी हो, लेकिन इधर मच्छर काटता है। 4-5 महीने हो गए बच्चों को गर्मी लग रही है, तो पानी लेके आते हैं बाहर से सिर पे ऊपर उठा के। तो बच्चे जो स्कूल, यहाँ पे तो डेरो स्कूल है सरकारी, बच्चे स्कूल जाते क्यों नहीं है? भाई हम फीस नहीं दे सकते, हम 600 सरकारी स्कूलों में तो फीस नहीं है, हमारा आईडी कार्ड नहीं है। ये थे मंजर झुग्गियों के, जहाँ दीवारें नहीं लेकिन उम्मीदों के साए अभी भी यहाँ है। इनकी उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। ये लोग इतने नाला हो चुके हैं, कहते हैं कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है। तंजन इनके ये अल्फाज जो है वो हुकूमत की दीवारों को झंझोड़ रही है। हुकूमत के ऐवानों से इनका यही मुतालबा है कि इनके बच्चों के लिए स्कूल का इंतज़ाम किया जाए, आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल का इंतज़ाम किया जाए। यहाँ पे हमें पता चला कि इनके हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हुकूमत से हॉस्पिटल इलाज मुआलजे की भी मुतालबात करती नज़र आ रही है, और ख़ास कर इनका जो अहम मुतालबा था वो ये था कि इनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है, इनके पास बे फॉर्म्स नहीं है। बच्चे जब घरों में ये पैदा होते हैं तो इनके पास कोई कार्ड वगैरह नहीं है, तो हुकूमत से ये भी ये मुतालबा करते हैं कि इनकी फिल फॉर जो है इनकी शनाख्ती कार्ड का इजरा किया जाए, ताकि ये जहाँ भी जाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोग्रामों से ये इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। कैमरामैन कमर शाह के साथ सैयद आदिल रज़ा, जहान न्यूज़, रावलपिंडी।